Hello student, welcome to next program or next practical of Java programming. Today we see practical number 21 and 22, that is develop a program for implementation of multi-threading operation part 1 and part 2. Okay, so multi-threading is one concept. First we see the practical significance. Multi-threading technique in Java helps to run multiple programs or process concurrently by utilizing the maximum CPU time. Okay, multi-threaded technique is implemented by creating, declaring, extending, implementing by thread. Okay, so thread is one inbuilt class in Java, and by using multi-threading we can perform two processes at a time. Okay, simple. I want to perform two. I can execute the two program at a time in multi-threading. Okay, that we see in this practical how we can implement the multi-threading. Okay, so for multi-threading we use the thread class, which is inbuilt class in Java. Student will be able to implement different types of thread method by assessing the priority to illustrate simultaneously execution of the thread operation. Okay, so we write one program. In that program we create two thread. One thread, first thread find the even number, and second thread find the odd number. Okay, first the relevant program outcomes are basic knowledge, discipline knowledge, experiment and practice, engineering tools, individual teamwork and communication. So these are some program outcome of this practical, and after this practical student able to develop the program using multi-threading. So this is the course outcome of this practical. Okay, so here is some theoretical background. Multi-threading is a small program which is divided into two or more sub-program that can be implemented simultaneously. Means the only one program is not run at a time. Two programs simultaneously run. Okay, so that we see when program is executed. Next, what is thread? It is the small process which is used to divide program into number of sub-parts, and each part can be executed in parallel. ओके, सो प्रोग्राम को अगर दो और तीन पार्ट में सब पार्ट में डिवाइड करना है तो हम थ्रेड यूज करते हैं. ओके, सो लेट हियर इज द वन डायग्राम. मेन थ्रेड, मेन मॉड्यूल, देन स्टार्ट, स्विच टू here A, B, C are the sub thread. Okay, so it switch in any of this. Okay, मतलब अगर एक प्रोग्राम को तीन पार्ट में डिवाइड किया तो कभी कुछ टाइम के लिए वो थ्रेड ए को एग्जीक्यूट करेगा, कुछ टाइम के लिए बी को एग्जीक्यूट करेगा, कुछ टाइम के लिए सी को एग्जीक्यूट करेगा. ओके, सो इट इज डिपेंड ऑन कंपाइलर. एंड रिमेंबर स्टूडेंट, इन मल्टी थ्रेडिंग एवरी टाइम आउटपुट गेट डिफरेंट. जब भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो आपको अलग अलग टाइप का आउटपुट आएगा. एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा वो, लेकिन आउटपुट अलग अलग डिफाइन करेगा. ओके, सो वो कैसे डिफाइन करेगा वो हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में देखेंगे. फर्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएटिंग थ्रेड. थ्रेड को क्रिएट कैसे करते हैं. ओके, सो थ्रेड्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग मेथड कॉल्ड रन. रन मेथड को आपको लिखना पड़ेगा अगर थ्रेड को एग्जीक्यूट करना है. उसका सिंटैक्स कैसा है, पब्लिक वॉइड रन. ओके, एंड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट राइट द बॉडी. आपको जो भी स्टेटमेंट इंप्लीमेंट करना है थ्रेड में वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. ओके, सो रिमेंबर थ्रेड के लिए आपको कौन सा मेथड यूज करना है, रन मेथड, पब्लिक वॉइड रन. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट इज अ थ्रेड कैन बी क्रिएटेड इन टू वे. वी कैन क्रिएट थ्रेड बाय टू वे. फर्स्ट वन इज बाय क्रिएटिंग अ थ्रेड क्लास. फर्स्ट थ्रेड क्लास का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं. तो उसके लिए डिफाइन अ क्लास दैट एक्सटेंड थ्रेड क्लास एंड ओवरराइट रन मेथड. ओके, दो रूल ध्यान में रखना है. फर्स्ट, आपको आपका जो भी क्लास रहेगा उसको एक्सटेंड करना है थ्रेड से. एक्सटेंड कीवर्ड क्यों यूज करते हैं हम, इनहेरिटेंस करने के लिए. व्हेन वन क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास, दैट टाइम वी यूज द एक्सटेंड कीवर्ड. ओके, एंड हियर इज द सम एग्जांपल. क्लास माई थ्रेड इज माई क्लास एंड एक्सटेंड बाय थ्रेड क्लास. थ्रेड इज इनबिल्ट क्लास इन जावा. ओके, और यहाँ पे आपका जो भी कोड है क्लास का वो आएगा. सेकेंड वे, बाय कन्वर्टिंग अ क्लास टू द थ्रेड. ओके, और इसको बोलते हैं बाय यूजिंग रनेबल इंटरफेस. ओके, सो रनेबल जो भी आपका क्लास रहेगा, रनेबल इज द इंटरफेस, हेंस वी यूज द वर्ड इम्प्लीमेंट्स. ओके, अगर क्लास रहेगा तो हम यूज करते हैं एक्सटेंड, अगर इंटरफेस रहेगा तो हम यूज करते हैं इम्प्लीमेंट्स. ओके, सो दीज आर द टू वे टू क्रिएट द थ्रेड. ओके, here is some methods related to thread are given. Start,
first method is start. Return type of this method is void. This method used to start the execution of thread. Run method, it is used to perform action for the thread. ओके तो जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करना है थ्रेड से वो आपको रन मेथड में लिखना पड़ेगा. स्लीप मेथड, इट इज स्लीप अ थ्रेड फॉर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम. ओके तो यहाँ पे एक पैरामीटर आएगा टाइम. जितना भी आप टाइम यहाँ पे पास करोगे उतने टाइम के लिए वो थ्रेड को स्लीप कर देगा. स्लीप मतलब स्टॉप कर देगा, एग्जीक्यूशन पॉज कर देगा. देन करंट थ्रेड, इट रिटर्न द रेफरेंस टू द करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड ऑब्जेक्ट. देन जॉइंट, इट वेट फॉर द थ्रेड टू डाई. गेट प्रायोरिटी, it returns the priority of thread. Priority is also one concept. This method is used to get the priority of thread. Some thread have more priority. Set priority is used to set the priority of the thread. Okay. Get name, it returns the name of the thread. Set name, it change the name of the thread. Okay. Get ID, it return the ID of the thread. Okay. So every thread have some specific ID. Is alive, this method return boolean value. It tests if the thread is live or not. If the thread is live, then it returns true, otherwise it returns false. Okay, so these are then yield method, suspend, resume, stop, destroy, notify all. These all the methods are related to the thread, and you all see in the theoretical parts also. Theoretical जब theory lecture में भी आपने ये पढ़ा रहेगा, the life cycle of thread, उसमें आपको ये मेथड आया रहेगा. ओके सो लेट्स सी द प्रैक्टिकल पार्ट. इन दिस प्रैक्टिकल वी परफॉर्म वन प्रोग्राम. लेट्स सी प्रोग्राम. राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट टू थ्रेड. वन फर्स्ट थ्रेड क्या करेगा, प्रिंट इवन नंबर. ओके सो फर्स्ट थ्रेड प्रिंट इवन नंबर एंड अनदर सेकंड प्रिंट द ऑड नंबर फ्रॉम 20 to 30. ओके सो एक थ्रेड बनाएंगे इवन नंबर प्रिंट करने के लिए और दूसरा थ्रेड बनाएंगे ऑड नंबर प्रिंट करने के लिए between 20 to 30. Okay, so first here I declare one class e1. e1 नाम का एक मैंने क्लास डिक्लेयर किया और extends thread. Okay, दो वे से कर सकते हैं, by using thread class and by using runnable. दोनों प्रोग्राम देखेंगे. फर्स्ट by using thread class देखेंगे. Okay, so first क्लास डिक्लेयर किया, उसको एक्सटेंड किया थ्रेड से. थ्रेड इज द इनबिल्ड क्लास. ओके सो e1 जो क्लास है उसको हमने inherit किया by thread class using extend keyword. Okay, inside that class I defined public void run method. Okay, run method में आपको कोड लिखना है जो आपको एग्जीक्यूट करना है by using this thread. Okay, so मैंने क्या किया, first I take one integer variable I. Okay, then I use for loop for I is equal to 20. 20 क्यों लिया, because we want to print even number from 20. So starting कहाँ से होगा 20 से. So I is equal to 20. I is less than equal to 30. 30 तक एग्जीक्यूशन करना है, इसलिए less than equal to 30. Then I plus plus. Okay. So ये for loop समझा क्यों लिखा. Then next one, अभी चेक क्या करना है, even थ्रेड है तो even नंबर प्रिंट होना चाहिए. So if I मॉडुलस 2 is equal to 0. I का वैल्यू चेक करने के लिए हमने क्या किया, I मॉडुलस 2. मॉडुलस ऑपरेटर गिव द रिमाइंडर. If the remainder in division is equal to 0, then number is even. Okay, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, वो नंबर को प्रिंट कर देगा. ओके सो फर्स्ट टाइम जब इसका एग्जीक्यूशन होगा तो 20 वैल्यू रहेगा, 20 इज इवन नंबर, सो प्रिंट कर देगा. 20 सेकेंड टाइम 21 रहेगा तो उसको प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि दिस कंडीशन गेट फॉल्स. ओके सो हेयर इफ लूप इज क्लोज, देन फॉर लूप इज क्लोज, देन मेथड रन मेथड क्लोज एंड द क्लास इज क्लोज. सो सिंपल, दिस इज फर्स्ट थ्रेड to print the even number from 20 to 30. Okay, next for odd number I create another class odd, extend by thread class, then public void run. Same code for I is equal integer I is equal to 20, I is less than equal to 30, I plus plus. सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे equal to 0 था, क्यों, यहाँ पे even नंबर प्रिंट करना था. odd प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, I मॉडुलस 2 is equal to 1. सो यहाँ पे वो ऑड नंबर प्रिंट करेगा. ओके सो दिस इज कोड टू प्रिंट ऑड नंबर. ये फर्स्ट थ्रेड हो गया इवन का, ये फर्स्ट सेकंड थ्रेड हो गया ऑड का. देन आई राइट माई मेन क्लास एक्सपेरिमेंट 21. इनसाइड दैट क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड मैंने डिफाइन किया. इनसाइड मेन मेथड फर्स्ट आई क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इवन क्लास, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया इवन क्लास.
उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया E1 E इज द ऑब्जेक्ट, न्यू E1, ओके। एंड अनदर ऑड का भी एक ऑब्जेक्ट किया, O इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑड क्लास, ओके। देन स्टार्ट मेथड यूज टू स्टार्ट द थ्रेड, सो सिंपल E डॉट स्टार्ट एंड O डॉट स्टार्ट, तो वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा दोनों थ्रेड का, ओके। सो दिस इज सिंपल प्रोग्राम by using multi-threading using thread class, okay. So and save this program by which name? By experiment 21. Why? Because the main method is present in this class, so आपको ये नाम से आपको सेव करना है. I already saved this program by using name experiment 21. So let's see the execution part. First command java c space file name experiment 21.java. Okay, my program executes compiles successfully. Then to get the output java space file. Okay, so let's see. First उसने कौन सा एग्जीक्यूट किया, ऑड नंबर का एक बार एग्जीक्यूट किया, देन इवन का एक बार एग्जीक्यूट किया, देन अगेन ऑड का किया, देन 2 टाइम्स इवन का थ्रेड एग्जीक्यूट किया, देन 1 टाइम ऑड का, ओके। सो उसने एग्जीक्यूशन किया 20 से 30 तक। ऑड नंबर इवन नंबर सब प्रिंट हुआ रहेगा, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30, बट दिस एग्जीक्यूशन इज रैंडम। कभी वो ऑड थ्रेड को एग्जीक्यूट करेगा, कभी इवन थ्रेड, ओके। अगर मैं वापस उसको रन करता हूँ तो आउटपुट अलग आएगा, ओके। सो यहाँ पे उसने फर्स्ट क्या किया था, ऑड नंबर को एग्जीक्यूशन किया था, यहाँ पे उसने क्या किया, इवन का एग्जीक्यूशन पहले किया, okay. So output is every time you get the different output in multi-thread, okay. So this is the output of your program, and you can write this program, ये first way हो गया by using thread class. You can write same program by using runnable interface also. So same program अब हम continue करेंगे, write a program to create 2 thread, one print even number, another print odd number by using runnable interface. तो चेंज क्या है, क्लास इवन, यहाँ पे मैंने लास्ट प्रोग्राम में क्या लिया था, एक्सटेंड थ्रेड, तो आपको क्या लेना है, इम्प्लीमेंट रनेबल, ओके। वाई? बिकॉज रनेबल इज द इंटरफेस, ओके। बाकी कोड सेम है, वॉइड रन मेथड, उसके अंदर मैंने कोड लिखा इवन नंबर प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट टाइम ऑड जब क्लास क्रिएट करोगे उसको भी क्या करना है, इम्प्लीमेंट्स रनेबल करना है, ओके। सो दिस इज सेकंड वे टू क्रिएट द थ्रेड. Then again write the code to print odd number in void run method. Then here I create class 22, okay. Then inside main class public static void main method में आपको क्या करना है, first create one object of even class and one object of odd class, okay. And then here this code is extra code. Here how we start the thread. First create the object of thread t1 is equal to new thread, and in that object pass the parameter of even class, object of even class, okay. यहाँ पे मैंने वो object पास किया है. Again I create another object of thread class t2, and वहाँ पे मैंने क्या किया है, object पास किया है odd class का, odd thread, okay. And t1 dot start, t2 dot start, okay. So this way we can create the thread. This is second way by implementing runnable interface. You get the same output. Save this program by this name experiment 22. I again run this program, java c space experiment 22.java. I already saved this program. Okay, java space experiment 22. Okay, so you get the output. Output वही आएगा. Okay, output you get every time get output is in different form. यहाँ पे देखो फर्स्ट इवन एग्जीक्यूट हुआ, बाद में ऑड, बाद में इवन. यहाँ पे फर्स्ट इवन एग्जीक्यूट हुआ, देन 3-4 टाइम्स ऑड एग्जीक्यूट किया उसको, ओके. सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टी थ्रेडिंग. सिंपल क्या हो रहा है, 2 सब प्रोग्राम्स, ओके. यहाँ पे 2 सब प्रोग्राम है, एक है इवन के लिए और एक है ऑड के लिए. सो 2 प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली. एक ही प्रोग्राम में हम साइमल्टेनियसली 2 प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक इवन का और एक ऑड का, okay. So this concept is called as multi-threading. All students write these programs in practical number 21 and 22, 2 programs, okay. So
Thank you.